सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस में और जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है दैट इज द पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट आल्सो। तो उसमें इफ वी डोंट एबल टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का निकालना जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर जो redox titration से suppose KMnO4 is reacting with ferrous oxalate, X moles of that KMnO4 are reacting with Y moles of ferrous oxalate. So one value will be given and other one will be determined. तो ऐसे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर के हम सॉल्व नहीं कर सकते। कई बार वो डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड दे दिया और उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो पूछ लेगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट थिंग इज कि हाउ वी कैन डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, इट इज द चार्ज imaginary or real possessed by an atom when it is bonded to other atom in a compound or ion is called oxidation state. तो यहां पर देखें कि कोई भी एटम है, जैसे सपोज वी आर हैविंग दिस HClO4 इज देयर, HClO4। तो यहाँ पर जो Cl दैट द चार्ज पोजेस्ड बाय द Cl, इसको मॉलिक्यूल को देखने में, इसका स्ट्रक्चर देखने में हमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, बट इट इज कैरिंग सम चार्ज। So this charge carried by Cl atom in HClO4 molecule is called oxidation number. तो फॉर एग्जांपल के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर डिटरमाइन करना है तो व्हाट वी विल डू, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हम OH से नोट करेंगे। अब दैट विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट, टोटल चार्ज possessed by all atoms in a molecule must be equals to the total charge present on molecule or ion, on molecule oblique ion। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम मान लेते हैं कि Cl, लेट फॉर एग्जांपल लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl be X। अब इस HClO4 में टोटल जो चार्ज है that is possessed by molecule HClO4, that is 0. So we can say the sum of oxidation state of all atoms will be equal to the charge present on a complete molecule. So in HClO4 we can say that is the oxidation number of H plus oxidation state of Cl plus 4 into oxidation number of oxygen।
this must be equals to 0 because this it is having a zero charge. Overall molecule is the neutral, so it is carrying a zero charge. अब देखो यहाँ पर देखें हम, हाइड्रोजन विल ऑलवेज है +1 विथ व्हेन इट इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल्स. अगर ये नॉन मेटल्स के साथ बॉन्डेड है तो इसका जो चार्ज होगा वो ऑलवेज +1 रहेगा. दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी ऑलवेज +1. Cl का हमको डिटरमाइन करना है. ऑक्सीजन व्हेन इट इज प्रेजेंट एज एन ऑक्साइड, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, -2. तो हियर वी कैन सी दिस इज +1 प्लस x इसका हमने मान लिया into 4 into -2 equals to 0. So from here the value of x will become +7. So that is OS of Cl atom is how much now? Oxidation state of Cl is equals to +7. Simple thing. अब इसमें there are some rules to determine. We are having some fixed value. So for fixed value now we can write some rules. That is the rules for determination of oxidation state or oxidation number. Oxidation state. First rule देखें कि all elements present in their pure form in nature carry or all elements present in nature possess zero charge. So therefore that is their oxidation number will be 0. Is it clear to everybody? For example, we are having iron presented as Fe, aluminium present as a solid aluminium, oxygen present as O2, nitrogen present as N2, phosphorus present as P4, sulfur present as S8 or S4. So all have zero oxidation number. सारे एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा when they are present in their pure form, whatever pure form, either it may be gas or it may be solid, liquid, कुछ भी है, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा प्योर एलिमेंट्स का वो 0 होगा. आफ्टर दिस वी कैन सी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ hydrogen atom is +1 when it is bonded to नॉन मेटल. अगर ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ अटैच है, उसके साथ बॉन्डेड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा. तो यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल देख लें, HCl, H2O, HF, H3PO4, NH3, etc. In all these compounds, the oxidation number of hydrogen is +1 क्योंकि ये नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल से अटैच है, इट इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल्स.
अगर नॉन मेटल से हाइड्रोजन अटैच रहेगा तो ऑलवेज इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1. आफ्टर दिस वी कैन सी नेक्स्ट पॉइंट इधर ही, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम is -1 when it is bonded to metals. जब ये अगर metals के साथ bonded है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1. फॉर एग्जाम्पल LiH, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, किसी भी मेटल के साथ अगर ये बॉन्डेड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1. AlH3 is there, etc. जब भी ये मेटल्स के साथ बॉन्डेड होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1. तो ये हाइड्रोजन की बात हुई. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखें हम, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां पर देख लें, व्हेन इट इज बॉन्डेड टू all atoms except fluorine as oxide, then its oxidation number will be -2. With fluorine, for example F2O, its oxidation number is what? +2. ये वाली बात हो गई. तो +2 शो करने के लिए ओनली वन कंपाउंड, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. पॉलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन का वो है 4.0 एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन पॉलिंग स्केल पर कितना है? 3.5. तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? +2 है. बाकी के सारे ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा? -2. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया, ये HClO4 वाला. तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया है ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीजन का कितना लिया है? -2. ये वाला -2 लिया है. इसके बाद देखते हैं कि दूसरे कंपाउंड्स में, दैट इज अगेन ये एक पॉइंट हुआ हमारे पास. दूसरा पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी -1 when it is present as a peroxide. अगर ये peroxide की तरह से प्रेजेंट है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1. फॉर एग्जाम्पल H2O2 हो गया, Na2O2, K2O2, etc. After that we can see one more point, oxidation number of oxygen will be -half in all superoxides. फ्लोरीन को छोड़ दें, सुपर ऑक्साइड. एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर KO2 इज द सुपर ऑक्साइड, क्योंकि अगर इसका आयनाइजेशन करेंगे तो K+ + O2-,
और दो ऑक्सीजन एटम्स पर सिंगल नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन पे कितना रहेगा, -12। और एग्जांपल देख ले हम, RbO2 इज देयर, BaO is there, this is what BaO2 whole twice, एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल हैं जहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -12। आफ्टर दिस वी कैन सी नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन के बाद फोर्थ पॉइंट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स। ये भी फिक्स रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1 इन ऑल कंपाउंड। जो भी इनके कंपाउंड है उनमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1। एग्जांपल देखें हम, Li2O हो गया, LiCl हो गया, KBr, NaI हो गया, एटसेट्रा। कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर एल्कली मेटल प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो वाली वैल्यू रहेगी ऑलवेज +1। इसके बाद देखें हम फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkaline earth metals, is always +2 in their compounds. So whatever compound is there, the oxidation number will be constant. For example, CaCl2 हो गया, BeCl2 हो गया, CaSO4, BaSO4, कुछ भी कंपाउंड है एटसेट्रा। इन ऑल कंपाउंड्स जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा और उसका वैल्यू रहेगा हमेशा +2। इसके बाद देखते हैं फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन is always -1 in its all compounds, इसके सारे कंपाउंड्स में फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो रहेगा -1। अब बात करते हैं हम अदर हैलोजेंस की। बात करें तो 7th पॉइंट लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस in their halides will be -1। इनका भी -1 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास HCl है, NaCl, HBr, कोई भी कंपाउंड है, KCl, AlCl3, कोई भी इनका हैलाइड है उसमें सब में इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, -1। तो ये सारे एलिमेंट्स का तो फिक्स्ड वैल्यू है। आफ्टर दैट 8th पॉइंट वी कैन सी दैट इज all other elements
all other elements exhibit variable ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी के सारे एलिमेंट जो शो करेंगे वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम कि फॉर एग्जांपल HClO4 हमने देख ही लिया। यहाँ पर एग्जांपल्स है कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम्स in the following compounds or ions। तो फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास KMnO4 ले लिया, इसमें अभी अंडरलाइन कर दूंगा दूसरे कलर से। बी ले लिया हमने NaNO3, सी ले लिया H2SO4, डी ले लिया NaBrO3, ई ले लिया PO4 3-। तो इनको देखें, अगर हम इसमें हमें कैलकुलेट करना है पहले Mn का इसमें, नाइट्रोजन का इसमें, सल्फर का इसमें, Br का इसमें और फास्फोरस का इसमें, फॉस्फेट आयन में। तो यहाँ पर देखें कि फर्स्ट थिंग ए, तो डायरेक्टली मान लेते हैं लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn be x। तो क्या करेंगे कि पोटेशियम का कितना है 1, एल्कली मेटल्स का इसका x माना हमने, एंड दिस वी हैव 4 into -2 equals to 0। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी +7। ये क्लियर टू एवरीबॉडी? 4 2 जा 8 -1, तो ये +7 हो गया। सिमिलरली इन बी केस है हमारे पास, बी केस वी आर हैविंग व्हाट दिस NaNO3। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NbX। तो सोडियम का कितना होगा +1, इसका x मान लिया, ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो 3 into -2 equals to 0 चार्ज। तो दिस वैल्यू इज कमिंग हाउ मच, x becomes equals to how much, 3 2 या 6 -1, so +5। Similarly for C case is H2SO4। तो H2SO4 में सल्फर का, this is the C case, let the oxidation number of sulfur Bx। तो क्या हो जाएगा यहां से 2 हाइड्रोजन 2 into +1 x 4 into -2 equals to 0। तो x की वैल्यू कितनी हुई +6। इसके बाद है हमारे पास PO4 ना, सॉरी NaBrO3। फॉर NaBrO3 दैट इज द डी केस के लिए देख लें। तो इसमें Br का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br मान लिया x, उतना ज्यादा डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा NaBrO3 का मतलब क्या हुआ कि इसमें सोडियम एल्कली मेटल का कितना था +1, तो +1 + x +3 into -2 equals to 0। तो x की वैल्यू कितनी हुई +5। ई केस वी आर हैविंग, आफ्टर दैट वी आर हैविंग ई केस we are having that is PO4
3 minus. So here oxidation number of PBX, so x plus 4 into minus 2 equals to minus 3 total charge. So this x becomes equals to plus 5. So in that way we can calculate the values of their oxidation number. अब देखो स्पेशल केसेस की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पेशल केस that is the first oxidation number of chromium in CrO5. तो CrO5 का अब हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. CrO5 is having a butterfly structure. It is having a butterfly structure, that is O, this is O, this is O, this is just like the butterfly. So here these 4 oxygen atoms, this plus this plus this plus this, all 4 are in the peroxide form. तो peroxide का हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन when it is present as a peroxide, जब ये peroxide के रूप में प्रेजेंट है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1. दिस इज कैरिंग -1 -1 -1 -1 और इसका कितना है -2. तो इसमें मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr Bx तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 ऑक्सीजन -1 में प्लस 1 ऑक्सीजन -2 में equals to 0. So x will become equals to how much? Plus 6. I think it is clear to everybody. Similarly और देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल स्पेशल केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मार्शल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, oxidation number of sulfur in Marshall's acid. Marshall's acid तो यहां पर देखें हम Marshall's acid का फॉर्मूला क्या है H2H2O8. तो यहां पर भी हमें इसका स्ट्रक्चर देखना होगा. दैट इज द स्ट्रक्चर क्या है इसका SOH H डबल बॉन्ड this is OO H डबल बॉन्ड OH. तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में है, 2 ऑक्सीजन, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1. ये बाकी के सारे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर में, क्योंकि ये सारे एज एन ऑक्साइड प्रेजेंट है. तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर of SBX तो H2H2 हाइड्रोजन 2 into 1 प्लस 2x 2 सल्फर एटम्स प्लस, अब देखो इसमें से 6 ऑक्सीजन कैसे हैं -2 में, तो क्या लिखेंगे हम 6 into -2 प्लस 2 into -1 और टोटल चार्ज 0. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2x will become equals to +12 and x will become equals to 6. तो मार्शल्स एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ +6. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेता हूं. ये इन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन केरोज एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO5. तो अगेन वी कैन सी, अगेन हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है OH H डबल बॉन्ड O OH. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें. तो यहाँ पर अगेन देख ले हम सेम चीज कि दिस इज peroxide linkage, sorry this is oxide linkage, peroxide linkage, और ये भी क्या है peroxide linkage.
ये ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड और ये भी ऑक्साइड। तो देखें फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S Bx, तो H2 2 हाइड्रोजन इंटू +1 प्लस सल्फर X +3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 परऑक्साइड इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर +6 आई। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसमें हम देख लेंगे कि उसका विदाउट स्ट्रक्चर उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हमारे पास कुछ ही केसेस हैं, कुछ केसेस में डिस्कस करूंगा, एक प्रॉब्लम शीट दूंगा, उसके बाद उनको डिस्कस करूंगा। सो नाउ बाय टू एवरीबॉडी, आई एम लीविंग। ये पूरा कंसेप्ट हो गया हमारा रिगार्डिंग, ये सारा रिगार्डिंग हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट के, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के बिना बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड और फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सब जगह में ज्यादातर है इसकी जरूरत पड़ती है। ओके बाय स्टूडेंट, बाय टू एवरीबॉडी।